Welcome everybody to the May episode of Man Darpan. Man Darpan, Man की वानी, कहानी हमारी तुम्हारी. This May was an important month क्योंकि 24th of May we had the World Schizophrenia Day being celebrated. And in keeping with this, आज का हमारा guest जो है Kalyanji Rana, someone who has been a very integral, special part of our Wellsprings Counseling Center, helping us at every moment, especially with our posters and all of that. But today, आज हमारा मुख्य अतिथि वो बन के आया है so that he can tell us a little more about his life and the problems that he overcame. Well, ये एपिसोड का नाम हमने रखा है हार जीत के रंग कल्याण जी के संग. चलो सुनते हैं कहानी उनकी उन्हीं की जुबानी. Well, I think it was around the 12th standard when you started experiencing some problems. Right. What was it, Kalyan ji? उस टाइम 12वीं में आपने क्या एक्सपीरियंस किया? At those times, I used to feel very angry, kind of a thing. I used to not get satisfied with the studies I used to do, and it was kind of sitting just at one place and working with kind of stuff, trying to find out what things would be able to help me out, kind of a thing. Finding ways to not get too angry. My parents used to help me. चिड़चिड़ापन, Yes, गुस्सा. kind of a thing. Then my parents suggested to recommended by others and doctor also that let's show him to a psychiatrist, so that will help. तो एक आम घर में जैसा देखा जाता है, खास करके 10वीं 12वीं में एक चिड़चिड़ापन जो होता है वो स्ट्रेस के वजह से देखा जाता है. यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये समझना ज़रूरी है कि अगर ये चिड़चिड़ापन हद से ज़्यादा होता है तब ऐसा ही छोड़ना नहीं है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, हमको मानसिक डॉक्टर के पास जाना, इसमें कोई फ़ायदा ज़रूर हो सकता है. तो वो चिड़चिड़ापन, वो गुस्सा, वो सब जब अति होता था, ज़्यादा होता था, तब आपके मम्मी डैडी ने आपको सुझाव दिया और आप उनके साथ मानसिक डॉक्टर को मिलने आए. बहुत सालों पहले की बात है ये. बट आई एम हैप्पी दैट एक घर में ये सोचा जाता है कि मानसिक डॉक्टर के पास जाना, इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई धब्बा नहीं है. लाइक वी से, नो शेम, नो स्टिग्मा. मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी. दे कैन बी नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ. तो ये शुरुआत थी प्रॉब्लम्स का. आप लोग प्रॉब्लम को संभालते हुए, पहचानते हुए मानसिक डॉक्टर के पास आए और वहाँ पे थोड़ा काउंसलिंग के साथ थोड़ा सा रूटीन कैसा बनाना है, किस तरीके से पढ़ना है और अपने गुस्से पे, अपने थॉट्स के ऊपर, फीलिंग्स और एक्शंस के ऊपर किस तरीके से एक कंट्रोल लाया जाता है, उसके बारे में हमने समझाया एंड थिंग्स वे मच बेटर. यहाँ पे एक और चीज़ देखा जाता है कि फैमिली सपोर्ट, मम्मी डैडी का जो है और ख़ास करके आपका भाई, Yes. आपकी बहन, सब ने बहुत सपोर्ट किया. 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स अच्छे आए Yes. एंड देन यू वेंट टुवर्ड्स graduation. Yes. What did you graduate in? Commerce. Okay. Bachelor of Yes. Commerce. And then I think you also did a course in NIT. Yes. I did a computer course, a career computer course, which enabled me to look for a career in IT. Okay. And since then, I'm in IT field right now, and Successfully yes, working in the IT field for so many years. almost right? 15 years of experience I have. Very and good. It's kind of a thing which now after medication and therapies and everything, I have kind of been able to manage everything. Let's And go to where it started from. है कि नहीं? कि ये सब तो हुआ था 12वीं में, आगे जाके सफ़र पार किया उन्होंने अपना ग्रेजुएशन का भी, और फिर जब आप बेंगलोर गए थे आपके जॉब के लिए, फर्स्ट जॉब के लिए, तब थोड़ा सा प्रेशर, एंड इट यूजुअली हैपन्स स्पेशली विद योर फर्स्ट जॉब, प्रेशर बढ़ सकता है और स्ट्रेस जब ज़्यादा तंग करता है तो कुछ बदलाव भी आता है हमारे सोच, विचार और व्यवहार में. तो व्हाट वाज इट दैट यू हैड स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग व्हेन यू वर इन बैंगलोर? During that time, actually, I used to work for almost 2-3 nights continuously, kind of, and the stress level was so much that it was difficult to manage.
And at that time the floods were also there, like in the year of Okay, 2005. five. And it increased more stress whether I could be able to reach to back to my family or not, what happened to my family members, and all those kind of thoughts were there in Thoughts. my mind. So after that, I immediately returned back to Mumbai and started looking for a job there, and continued with the medication continuously. ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब आपको डर, तकलीफ, बेचैनी महसूस होने लगा. Right. ऑल्सो यू स्टार्टेड हियरिंग वॉइसेस. ये क्या था? आपको लगा कि लोग आपके खिलाफ है, आपको लगा कि लोग कुछ आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है. एंड दिस माय डियर फ्रेंड्स इज़ द हॉलमार्क ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. स्किज़ोफ्रेनिया में डर लगना, एक शक और शक का वहम में बदलना, ये खास बात होता है. वी कॉल देम डिल्यूजन्स एंड हेल्यूसिनेशंस. कानों में आवाज़ें सुनाई देता है जो आम लोगों को नहीं सुनाई देता है. ये हमारा वहम से एक हिस्सा होता है, लेकिन ये इतना पक्का होता है कि हम इनको पूरी तरह से विश्वास करते हैं इनके ऊपर. सो व्हाट इज़ द ट्रूथ, व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ इमेजिनेशन, इसका कोई दायरा नहीं रहता है. एवरीथिंग इज़ ब्लर्ड बट इट कैन बी वेरी फियरफुल. आपको काफ़ी डर महसूस होता था. Right. और उस डर में कभी गुस्सा बढ़ता था, उस डर में कभी चिड़चिड़ापन बढ़ जाता था, एंड काम पे ध्यान मुश्किल हो जाता था. ये सब पहचानते हुए फिर मानसिक डॉक्टर के पास आना ज़रूरी होता है. यही किया था कल्याण जी ने, और वापस सपोर्ट आपका पूरा फैमिली के साथ. राइट. सो यू केम, यू एक्सप्रेस्ड योर सिम्टम्स, और हमने दवाई गोली शुरू किया आपके लिए. दवाई गोली के साथ फिर क्या हुआ इन सब तकलीफ़ों का? Actually, it helped me a lot, and I was able to concentrate. There was kind of effect on sleep cycle also. I was not either, if I don't take medicine, I never used to sleep. Kind of 2-3 days I used to stay awake, no sleep. Then if I take the medicine, kind of the sleep cycle was okay. Then I recommended for a better cycle of sleep cycle. Food intake was incorrect. All those issues were slowly getting resolved with the medication. Right. And so on. It helped me a lot. Then I looked for another job opportunities across the state and across the country as well. And then finally I returned back to Mumbai and started a job in one of the IT company in Navi Mumbai itself. And then my parents also supported me well to manage everything with doctor अगेन support as well. फैमिली सपोर्ट. Yes. और खुल के बातें करना अपने मानसिक डॉक्टर के साथ. आपका मानसिक डॉक्टर आपका डॉक्टर ही नहीं, आपका दोस्त है. तो अगर प्रॉब्लम्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होता है, कभी नींद ज़्यादा आ सकता है, कभी हाथों का कंपन होता है, कभी ध्यान थोड़ा सा कम लगता है, ये सबको बैलेंस किया जा सकता है. बट यू मस्ट टॉक टू योर डॉक्टर, यू मस्ट शेयर योर प्रॉब्लम्स टू योर डॉक्टर. एंड टुडे मॉडर्न मेडिसिन हैज़ गिवन अस सो मेनी डिफरेंट मेडिसिन्स कि हम लोग चुन चुन के आपको दवाई गोली दे सकते हैं कि इन दवाई गोली के साथ आप आपके काम पे जा सकते हैं, बराबर से ध्यान रख सकते हैं, एंड यू कैन हैव अ वंडरफुल लाइफ along with treatment and medication. And one important thing I would like to say is family support is very important. You cannot get cured on your own. There has to be some support with someone. You, even with meeting a doctor, you cannot go directly to a doctor and ask what is happening. There has to be some family member with you. So that is a very important thing. True. Yeah. And और इस जर्नी में जाते जाते कल्याण जी लॉस्ट बोथ हिज फादर एंड हिज मदर. दोनों का देहांत हुआ था. लेकिन बहुत बढ़िया बात जो है ये कि उसका भाई, उसकी बहन, जीजा जी, उनके बच्चे सब एकजुट होके कल्याण जी का इतना सपोर्ट करते हैं कि उसे कभी भी अकेलापन महसूस होने नहीं दिया. एंड ये जब होता है तब ऐसे मानसिक बीमारियों के लिए मुक्का मार एकदम बढ़िया सा हो जाता है. सो फैमिली सपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट. सब कुछ अच्छा जा रहा था, दवाई गोली कम करते ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, और उसके बाद कुछ बातें वापस शुरू हो गया. व्हाट वाज दैट? I was in Hyderabad. I got a very job in very renowned company. I worked there for 5 years. But at the end of the fifth year, around during 1 month period, I used to again feel such things. Kind of, I used to hear other people's voices.
Earlier, I used to, my thoughts were getting broadcasted previously for 7 years or so. Then after that, when it came back, I used to hear others' दूसरे voices. लोगों की बातें. Yeah, kind of conversations going on, what is happening. My thoughts are getting So broadcasted. this was what we called a relapse. यानी मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार मलेरिया होता है तो क्या वापस मलेरिया नहीं हो सकता है? ज़रूर हो सकता है. तो उसी तरह से ये रिलैप्स हुआ था और ये रिलैप्स के लिए वापस ट्रीटमेंट जारी रखना, डॉक्टर के पास आना और दवाई गोली के साथ साथ आपने बहुत कुछ और भी किया. यू participated in our support group meetings, you took part in our discussions, meditation workshops और ऑनलाइन उस वक्त कोविड का भी जो आया था, फिर ऑनलाइन ट्रीटमेंट लगातार साल 2 साल के लिए. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी कमेंडेबल कि आपने आपका ट्रीटमेंट कहीं पे भी रोक नहीं किया था. सो इट कंटिन्यूड इन स्पाइट ऑफ द कोविड, एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन एंड कल्याण जी गेव हिज मेंटल हेल्थ ग्रेट इम्पोर्टेंस. इनसे कुछ बातें हमको और समझ में आता है. फर्स्ट, एक्सेप्ट योर इलनेस. यू हैव एक्सेप्टेड योर इलनेस एंड यू आर लिविंग योर लाइफ विद द चैलेंज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. और शिकायत नहीं करते हुए ज़िंदगी का ऐश आप ले ही रहे, लुफ्त उठा ही रहे, राइट? He joined his company, the next company that was there. I remember when he talks about going to Delhi, etc. for the parties that are there. Time off होता है, you go and enjoy with your friends. और साथ में अपना दवाई गोली भी लेता है, डॉक्टर की मुलाकातें बराबर से करता है. ये सीखना बहुत ज़रूरी है कल्याण जी से. Understanding your illness, accepting your illness, having regular treatment and follow up with your doctor, sharing your problems and seeking solutions with your psychiatrist, all very important. साथ में शादी के बारे में भी सोचना, ये तो हो ही जाता है. इसके बारे में आपको क्या बोलना है? The only thing I would like to say is it may happen or may not happen. That is, I leave it to God. But I will make an effort that if someone comes to my comes into my contact or in a way, they would be ready to accept me as I am, the same way as I would accept them as they are. Very good. So this is what each of us must learn. कि अगर मानसिक बीमारी का ऐसा कुछ अपने ज़िंदगी में है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है. हम लोग सब बोलते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया ऐसा है ना, इसके लिए मैं नहीं बोलता. दुनिया की शुरुआत हमसे होता है. अगर हम बेझिझक ये बात सामने लाएंगे, तब ये शर्म, ये धब्बा सब निकल जाएगा. So that is what Kalyan ji has promised, that whoever comes into his life at the right time, he will mention to them कि मेरा स्किज़ोफ्रेनिया था, ट्रीटमेंट चल रहा है, you accept me as I am. और अगर ये होता है तो this is how relationships are based on the foundation of truth. जो रिश्ता इस बुनियाद पे बसा हुआ है, ये हमेशा कामयाब ही रहेगा. तो ज़िंदगी इनका जो है उसमें हार जीत, तकलीफ़, तनाव, ये सब हमने देखा है, लेकिन इसके बावजूद उसका हंसता हुआ चेहरा और ये ठान लेना कि आई विल गो अहेड एंड मेक द मोस्ट ऑफ माई लाइफ विद ट्रूथ, विद डिग्निटी एंड विद स्ट्रेंथ. दैट इज़ वॉट वी लर्न फ्रॉम योर स्टोरी इन स्पाइट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. यहाँ पे एक गाना आता है मन में, हार जीत वगैरह ये सब जो शब्द है, मिस्टर इंडिया तो सब ने देखा ही रहेगा, और वो एक गाना है जो बेहद पसंद है. और यहाँ पे एक मैसेज भी हमारे लिए होता है. Why not end with the words of that song? Let's have that song and enjoy that song. The song word जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. थोड़े आंसू है, थोड़े हंसी, और आज गम है तो कल है खुशी. These words are very inspiring. Let's hear it. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, गम है तो कल है खुशी. जिंदगी
what we learned from you.